Assalamualaikum. My name is Farhad Karamally and welcome to another episode of From the Top Inspiring Conversation. Digital media का तो आपको पता है कि we have content that is related to only comedy, entertainment और हम reels देखते नहीं थकते. But the idea of this podcast is to invite leaders, thought leaders जो कि leadership, workplace और well-being पे आके हमसे बात कर सकें. And today my guest is Pakistan's leading OD consultant Farhad Karamally. Farhad bhai, thank you so much for joining us. Thank you very much for inviting me. It's a pleasure. Farhad bhai, to be very honest with you, I did some preparations as well, but I just want to go unfiltered with you. And the only reason is because जब मैंने अपना काम शुरू किया था, you were among the top and माशाल्लाह you are. So मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपसे कुछ दिल की बातें करूँ. आप दिल की बात करें, मैं भी unfiltered ही रखूँगा. लेकिन edited unfiltered, ये मैं clear कर दूँगा. बिल्कुल ठीक है. Okay. Farhad bhai, it's been almost 2 decades, even more than 2 decades. यहाँ तक जो आप पहुँचे हैं, how would you consider this? Was it just luck or some planning or some like कि कहीं से कुछ करा के इधर आ गए? How would you define your journey of leading to what you are now? I'll make it very simple. कई दफ़ा होता है, and this may answer your question as well. People often ask me, what was my calling in life? Is this my purpose in life to do consulting, training, helping people? क्या शुरू से मैंने ये सोचा हुआ था या ज़िंदगी में कोई एक ऐसी ट्रेजेडी आ गई तो जिसके बाद फिर मैंने ये सोचा कि नहीं मुझे ये करना चाहिए. आप कौन सा जवाब सुनना चाहेंगे? चल I'll give you the reality. ये होता ही है ना. I generally in a one-liner, you flirt with someone, you fall in love. That's actually what I did. So I started teaching and I enjoyed and I started getting money, and then people started calling me. They were executives I was teaching. They said, why don't you come, your style is very cool, why don't you come to our office and organization and do it? And I said, why not, try करते. जब मैं गया तो मेरे हाथ में चेक आया, मैंने कहा तेरी ये तो पैसे भी आ रहे हैं यार. This is back in the day, looking at 95, 96. So I said, this is pretty cool. And then it just happened, it multiplied. I started enjoying it. And it just keeps on happening. People say, is this the thing that I'll do for my life? I really don't know. क्योंकि देखो मेरा जो है ना, I have certain aspirations in life to achieve. My work, what I do, is a medium. It helps me achieve that in the right way, with the principles and values that that are very sacred to me. So keeping that in place, it's allowing me to do it. I'm doing it. Tomorrow something else comes up, I really don't know. तभी तो मैं बहुत सारी चीज़ें करता रहता हूँ. लोग अक्सर परेशान रहते हैं कि आप करते क्या हैं. मैं कहता हूँ मैं वो करता हूँ जो मेरा दिल करता है. So, and I just keep on doing that. At the same time, now, how did I get into this teaching? कहाँ से शुरू हुआ? I've been very, very fascinated with learning. तो हुआ ये कि whatever I had studied, and then when I started looking at organizations, when I started working, I realized that what they were doing was taking me away from what I had learned. And that was good treasures. I didn't want it to go down as a trash. So as a result of which, what I started doing is I started teaching. I did not want to forget what I had learned. I wanted to keep on learning new things as well. And the only way you can really learn, I think Howard Glasser research है that if you really want to learn something, teach somebody. It enhances learning by 95%. So I started teaching. So I started teaching on weekends. And then as I said, then it just happened more and checks and money, and the fun part of it, I got to learn more and more. And as I said, the byproduct is very nice as well. The byproduct is people finding value, that they are able to impact their own lives. So yeah, smooth sailing. Happy go lucky, no tragic story, nothing. I don't know. अक्सर लोगों को मैं कहता हूँ कि आपका मूड नहीं खराब हो गया. लोग कहते हैं कोई ट्रेजेडी होगी, कोई ट्रेजेडी नहीं है. Allah has been very kind. Right. Farhad bhai, I still remember our first meeting. You had a session and मैंने आपसे एक सवाल पूछा था. There I want to ask again. I said on one side जो business है, it's all about results. कि जी किसी तरह से हमारा जो है वो काम चले, पैसे आएँ, business grow करे. On one side people like us, trainer आते हैं और आके बताते हैं कि जी कदर करें, trust करें, employees को develop करें. तो कहीं ना कहीं पे ये दोनों चीज़ें contradictory नहीं है कि on business we need results, but there we have to engage and we have to make our people happy as well. तो उस वक्त मैंने क्या जवाब दिया था मुझे नहीं पता, because my जवाब keep on changing, because my experiences keep on changing. Even there are times when 3 महीने पहले कुछ कह के हूँ, अभी कुछ बोल गए. Last time नहीं बोलता मैंने, world has changed. This is a new insights, new research, but okay. You probably know I work on compassion in business, and I want to take compassion. It's my personal desire to take compassion into organizations so that people understand. And I'm often asked this question: what is the value of compassion? आप मुझे बताएं, if I go into a compassion and business initiative, how much more money will we make? Because that's what we are there for.
And my response to that is, you tell me the opportunity cost of absenteeism, low morale, toxic work environment. आप मुझे उसको value कर दें, मैं आपको बताऊंगा compassion से क्या फ़र्क पड़ेगा. So the answer to your question then is, you see, the numbers that you get is as an outcome of things done right. What are those right things is what needs to be understood. So the value of our work is very simple. You give me the value of disengaged employees, I'll give you the value of what our work is. Wow, great. Thank you Farhad bhai for this. Farhad bhai, over the years कुछ changes आपने leadership और management की practices में देखे, because you are closely working with the leadership teams. कुछ ऐसे concept जो आपको लगता है कि 20 साल पहले तो बड़े cool थे but आज के दौर में वो irrelevant है? काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी which over the years you enhance, you enrich. There are terminology. I think there are different levels. Let's say if you take an iceberg, you break it down to different levels. Surface पे बहुत चीज़ें change हुई हैं. एक ज़माना था, right at the top, people used to find it very fancy to ask and judge a trainer by asking them, do you know the difference between efficiency and effectiveness? तो होशियारी मारने के लोग ये कहते थे. Came along, क्या था वो, good to great, and then suddenly everybody was speaking of greatness. And I think the 8th habit also had to do with something like greatness. I can't recall off the cuff. But so terminologies keep on changing. When I interact with them, I think yes, some people are in a rush. There is scope. Quick fixes, more quick fixes now required than, and I understand the times are like this. But there's still certain, and something that I'm working on right now is the Timeless Leadership Masterclass. Because there are certain principles in leadership that don't change. Respect. Now, how you show respect, whether you want to give direct feedback, indirect negative feedback, वो एक अलग बात है. But the importance of respect cannot be questioned. Integrity cannot be questioned. Accountability, being responsible, finding clarity, not being fixated on a point of view. Now, these are all timeless leadership principles. So, irrespective of the times of take it 1,000 years back. I was just being careful कि इधर कौन से करते हैं unfiltered. Okay, I'm almost giving an example. I have to be careful. But or you look at it right now. Certain principles will remain the same. The demonstration of it on the top of the iceberg will change, but basic principles remain the same. And I think they exist even today. For people in organizations that could be considered as leaders, demonstrate this. How many are they? Yes, there is a question mark. A lot of companies, they say, this is a leadership team. And I told a couple of people at times, I said, call them the management team. They are not the leadership team. If you have one particular person, you call them leadership team just because of the hierarchy, जिसको शायद मैं अपने पास assistant manager की तरह भी ना रखूँगा, because of lack of leadership skills, doesn't track it out. But yeah, deep. Good question. Thank you, Farhad. Farhad, one more question. You are the brand ambassador of making learning valuable. I know in few of our interactions, you always prefer कि जो learning है उसकी value है और वो value पे ही deliver होनी चाहिए. And I still remember once I asked one of my mentor, मरहूम नदीम भाई, I said, नदीम भाई आप तो माशाल्लाह the leadership trainer हैं पाकिस्तान के, बहुत अच्छे leadership trainer हैं. अभी तो लोग 50,000 में 1 लाख रुपए में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इससे आपकी मार्केट ख़राब नहीं होती? तो ही ब्यूटीफुली रिप्लाइड कि नहीं, हमें फ़ायदा होता है, बिकॉज़ वो जो काम की क्वालिटी डिलीवर करके देते हैं, क्लाइंट फिर हमारे पास आता है, फिर हम उनसे अपने मर्ज़ी के जो है वो पैसे चार्ज करते हैं. सो वाज दिस योर पॉलिसी फ्रॉम द डे वन और यू ऑल्सो इवॉल्व विद दिस? पहले मैं नदीम की बात कर लेता हूँ. जो आपने कहा ना, यस समटाइम क्योंकि हम लोग बात करते थे तो मुझे याद है, तो हम कहते हैं पहले लोग वहाँ पे काम ख़राब करके आते हैं, पहले हमें अनडू करना पड़ता है, फिर हमें वापस नई चीज़ करनी पड़ती है. तो वी आर डूइंग लॉट ऑफ अनडूइंग एज वेल ऑफ व्हाट समटाइम्स अदर पीपल यूज्ड टू डू. देखिए, इफ़ यू नो द वैल्यू ऑफ योर वर्क, इफ़ यू नो व्हाट यू आर डूइंग एंड you have the integrity of giving value, you know what value and you know why you're doing this thing. So for example, the agenda that we've never had is कि मेरी तस्वीरें कितनी लग रही हैं, मैं कितनी जगहों पे आ रहा हूँ, मेरे लिए तालियाँ कितनी बज रही हैं, वो Allah has been kind, it's a gift. So through the people that you contribute, they clap, they appreciate, people like yourself, you appreciate, you call me, events like these. So this is Allah's gift in His own way to people like us. But the main agenda is actually giving value, and shuru se yahi raha hai. So and I really don't mind. You can say, what, I knew everything. He just helped me. Ek dafa mujhe yaad hai story example. Once I did this thing with a client, and when he finished, he said, what? We already knew this.
And what you gave us is just what we already knew. You just helped us come out with it. I said उसी चीज़ के पैसे. पर मैं कौन होता हूँ बताने वाला, वो आपकी चीज़ है, आपको पता है. And that's exactly what the purpose is. Yes, for example, oftentimes you've heard this as a joke, and this is a joke related to our industry, so I do take it personally sometimes. वो कहते हैं consultant is somebody who will come up to you, wear a nice suit, come up to you, borrow your wristwatch, tell you what the time is, and charge you money for this. तो लोग कहते हैं ये तो आप लोग तो ये करते हैं. हाँ करते हैं, because everybody in its truest sense, biologically speaking, does have a blind spot. तो आपके और मेरी आंखों के बीच जहाँ से वेन्स जहाँ से आंखों से निकल के दिमाग में जाती है, वो हमारा ब्लाइंड स्पॉट है ही है. सो कई दफ़ा आपको खुद को नज़र नहीं आ रहा होता, हमारी तरह के लोग आके आपको दिखाने के लिए हेल्प करते हैं. सो वी आर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड येस देयर इज फीस फॉर दैट एज वेल. सो आई थिंक द वैल्यू इज़ डेफिनेट, एंड आई थिंक शुरू इट्स नॉट चेंज. मुझे कई दफ़ा लोग इन न्यू मार्केट्स फॉर एग्जाम्पल लोग कहते हैं कि पैसे कम कर लें, फिर नहीं. I know what value I am able to give. If I'm unable to give value, then I'll say I'm unable to give value. फिर नहीं करो या काम मुझसे, क्योंकि और मैं लोगों को कहता भी हूँ, people, those who've interacted with me would know this. You call me to do a session personally. If you call me as an organization, we've got different trainers doing it. But as an organization, for example, आप मुझसे कहते हैं आगे time management की training कर दें एक दिन की. Ridiculous. You're using a nuclear weapon for something that could have been done with a small aerosol. तो क्यों बुला रहे हो यार? फिर नहीं बुलाओ ना, क्योंकि वाकई वैल्यू मिलेगी, लेकिन अगर मुझे कहोगे उस वैल्यू यार बहुत महंगा पड़ जाएगा, नहीं करो. देयर आर बेटर ऑप्शंस ऑफ डूइंग इट. And Farhad bhai, one question there is like my personal question जो कि मैं आपसे पूछना चाह रहा था, as a trainer should we go for side hustle as well? Because जो मुझे challenge face आया, because when you have training as your primary source of income, और अगर आपको डेज नहीं आ रहे या कुछ मार्केट में जो है वो से के चैलेंजेस डेज चल रहे हैं, तो यू गेट मैनिपुलेटेड एज वेल, बिकॉज यू हैव टू रन योर किचन एज वेल, यू हैव टू मीट ऑल दीज एक्सपेंसेस एज वेल. तो इज़ इट नेसेसरी फॉर अ ट्रेनर, फॉर अ कंसल्टेंट कि अपने प्राइमरी काम के साथ हसल भी करे या उसी में जो है वो ग्रो करे और अपने प्रिंसिपल सेट करते हैं? या आई डोंट नो हाउ लॉन्ग योर पॉडकास्ट इज, और यू जस्ट नीड टू हैव टू ब्रेक इट अप इनटू 2 पार्ट्स, बिकॉज ये आपने बड़े, आपके सवाल बहुत ही हैवी हैं, एंड आई विल हैव टू ब्रेक इट डाउन. Okay, if I say कि नहीं करना चाहिए side hustle, many people turn around and said, what is FK squared? What is your tour business? What is the sanitizer thing you went into? What is it? So I have a lot of things that I've actually started off जो कि लोग कह सकते हैं side hustle है. I don't consider them as a side hustle. The things that I enjoyed doing, and उनमें कहीं पे भी मेरा नाम ऊपर नहीं आता. Even if I start something, I would prefer hiring a CEO or doing it. It is something I wanted to experience in America, and they were not done for money. They were done either the desire to learn a new industry, situations went into that direction. I said ठीक है चलो करके देख लेते हैं. लेकिन अगर देखा जाए, Farhad Karamally as an individual has been very committed to this industry, and I am very committed to Funworks Global Management Consultancy Company. So that is what my commitment is, and everybody even in my office knows. If for lack of a better set of word, if shit hits the roof, I'm going to put all my energy into Funworks. I'm very clear. That's my mothership. बाकी तो मैं करता हूँ ना, चलो इसका CEO ये बन जाए, इसका GM ये बन जाए, चलाओ देखो कैसे चलता है, कभी ज़रूरत पड़ेगी ओके चलो I'll fill in financially, लेकिन that's what my core is. अब आप आ जाएं specific. So that's part of the answer. So if I am doing other things, अगर लोग कहते हैं कि you do different things, yes I do, but understand what is my role and how much I do, उसमें मेरा नाम कितना आता है. So let's just park that. जितनी मैं promotion करता हूँ, you see LinkedIn के अंदर, that's all Funworks oriented. That's hardcore Funworks. अब आप आ जाएं इन, so it was never for money. Now let's look at the field. This is something I've been doing. This is my 27th year. इस पर कई ट्रेनर्स भी मुझे कहते हैं, सब गुड नेम्स एज वेल. अब आप नया क्या कर रहे हैं? अब आप कितने साल तक यही करते रहेंगे? यू स्पीक ऑफ चेंज, यू आर डूइंग द सेम थिंग. आई सेड यस, आई डोंट वांट टू गेट इनटू अ कन्वर्सेशन. आई एम टेलिंग यू, अगर 27 साल से मैं एक ही मंजन बेच रहा होता ना, मैं इधर नहीं बैठता. So obviously I'm doing things within my industry. Every year I am learning, developing, enhancing, and I think I'm able to offer much more to my clients than one standard solution. और कई दफ़ा क्लाइंट कहते हैं लेकिन आप इतनी चीज़ें खोल देते हो. ऐसे दुनिया में है इतनी चीज़ें, मुझे क्या पता, बिकॉज आई एम नॉट गिविंग यू वो एक चीज़ जो मुझे आती है. मैं आपके सामने 6 चीज़ें खोल दूंगा. You decide. I think there's a very interesting book called Strategy Safari. It's an old book, Henry Mintzberg plus 2 others. It's a fascinating book. There are 10 schools of thought of strategy. Now, a client meets me, they meet me, and there I have opened up with a variety of things depending on your culture, which school of thought to follow for strategy, versus one person who's come out from the one company, he's a practitioner all his life. अब वो जो चीज़ वहाँ पे सीखा है वही बेच रहा है, वो कहता है वही चीज़ सही है. क्लाइंट को भी कहता है हाँ ये इसके दिमाग में क्लैरिटी है. क्लैरिटी नहीं है, प्रीवियस एक्सपीरियंस है जो उसने एक अलग इंडस्ट्री में अपनी कंपनी में देखा है, वही बेच रहा है. वेयर इज द अदर थिंग्स? So answer to your question, again I'm still going into that same answer. Spend time
mastering what your core is. If your core, you have chosen consulting, training programs to be your core, stick to it. ट्रेनर्स को बड़ा शौक दिया, मैंने कोविड के दिनों में बड़ा कहा था. यू प्रॉब्ली हर्ड, वो कहते हैं ना, एक कोटेशन है, डोंट टेल गॉड हाउ बिग द स्टॉर्म इज, टेल द स्टॉर्म हाउ बिग. यू हर्ड इट राइट. कोविड के दिनों में मैंने कुछ ट्रेनर्स को ये भी कहा था, क्या करेगा. मैंने कहा बोलते रहे हो ना अपने मोटिवेशनल सेशंस के अंदर, ये मंजन बेचा है ना कि ये मत देखो कि खुदा को मत बताओ कि तूफान कितना बड़ा है, तूफान को बताओ कि देखो मेरा अल्लाह कितना बड़ा है. तो बेटा कर लो ना, अब मुंह दो ना. एवरीबडी वेंट थ्रू डिफिकल्ट फेज, आई वेंट थ्रू डिफिकल्ट फेज. दैट डिड नॉट मीन आई ट्राई टू डू मोर, आई ट्राई टू डीप डाइव, एक्सप्लोर अदर थिंग्स विद इन द इंडस्ट्री. आई लर्न मोर, आई डिड मोर सर्टिफिकेशंस इन दैट पीरियड. Was I affected financially? Everybody was. I'm not going to say कि नहीं. Did I have to adjust? Liabilities went up. Yes, everything happened. लेकिन पता था ना, नीयत साफ है, काम यही होना है, इसी तरीके से होना है. बैक एंड फोर्थ हुई चीज़ों की चीज़ें, ठीक है, बट दैट वाज नॉट द रीज़न एट एनी पॉइंट. उस वक्त मैंने कुछ भी ऐसे नहीं किया कि अब कोई नया काम शुरू करते हैं यार, ये नहीं, और साइड हसल करते नहीं. इट हैड टू बी डन. आई डिड नॉट इवन कॉम्प्रोमाइज ऑन द प्राइसिंग बिकॉज द क्लाइंट्स वैल्यू वॉज स्टिल द सेम. तो अब ये वो टाइम आता है, देखो सबकी ज़िंदगी थोड़ा सा बर्दाश्त भी तो कर लो ना, थोड़ा हिट लेकर देखो, तो उसी में तो मज़ा है. वरना क्यों खड़े होकर भाई कहानियाँ बेचते हो. तो या So have I answered your question? Side hustle ज़्यादा expertise develop करें over the years, cement it. Lovely. Farhad, one more thing. Training or consulting? I know you are doing consulting a lot. तो इन दोनों में which one is your most favorite in terms of like where do you enjoy the most? Is a trainer on the floor or doing this consulting projects? I think they're both connected. I can't separate. So for example, if I'm doing training in the absence of doing, which I have a lot of time, I do find a lot of satisfaction in giving value to the people sitting over there. But then I know कि कंपनी को तो क्या फ़ायदा होना है, इन्होंने मेरा चेकलिस्ट आइटम था, जाके काम ख़त्म किया, ठीक है. When I'm able to do consulting, then I can walk the entire 9 years. And my consulting is not कि मैं ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा. मैं आपको रोड मैप कर लें, चीज़ सही करें. यू डू द राइट थिंग. जो मुझसे करना है मुझसे करो, किसी और से करना है किसी और से करवा लो, किसी और कंपनी से काम करना है किसी और कंपनी. रोड मैप समझो. सो आई फाइंड मोर जॉय in the journey as opposed to just anyone. You just do consulting and don't do training with me. I haven't felt के on ground क्या हुआ है. You do training programs with me. I really don't know कि उसका असर क्या चीज़ आएगी. So I really need to be part of the entire journey to be able to see कि इसका value आपको क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या क्या चीज़ें करनी है. And again, it's not about कि मुझे काम मिला या नहीं मिला. That's irrelevant. Quite a few years back, I was invited by Ministry of Commerce. Branding Pakistan के time पे. So I went over there. Okay, तो एक टाइम ये भी था कि I was speaking to somebody in another country and I was working with them on the nation branding exercise. So I was doing work with them. तो यहाँ पे being a foreigner in that land, they were good. और उनके बाद गवर्नमेंट चेंजेस वगैरह हुई तो मेरा प्रोजेक्ट बीच में रुक गया. बट काफ़ी अच्छा रोड मैप वगैरह सारा तैयार किया था. MOC में यहाँ पे पता चला somebody is recommended mine and the Pakistani working with these people in this country. So why don't you speak to him? They called me. उन्होंने प्रेजेंटेशन मांगी, मैंने प्रेजेंटेशन दी. अच्छा मुझे पता है इसका ब्रांड टैगलाइन क्या होगा. ऐसे मुझे नहीं पता. जैसे नहीं तो आप तो ब्रांडिंग के लिए. मैंने कहा हाँ, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि प्रोसेस है क्या. एनीवे, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो इनक्रेडिबल इंडिया की जो कॉस्ट थी 1/12 द कॉस्ट ऑफ व्हाट दे वेंट थ्रू इज व्हाट वाज माय प्लान. बट देयर वर सर्टेन कंडीशंस एज वेल. आई रियली डोंट केयर whether you're a PTI or a PMLN or a PPP or God for anybody else. I really don't care. If you want to brand Pakistan, this is a long term process. You need to understand the nuances of the whole thing. मैंने पूरी चीज़ें की. फिर एक साहब एंड मेरी मीटिंग खत्म हुई तो इनको तो क्लियर हो गया मैंने कोई बेचने नहीं आया हूँ मैं. You asked me, I'm telling you what the right way of doing it. If you take my time, I'll charge you. If you don't, I won't charge you. कम से कम चीज़ सही कर लो, ये मेरा था. So this guy asked me, he said, I don't remember who you, I mean, I still remember his face, but he said कि अच्छा ये बात तो बताएं. मीटिंग खत्म होने के बाद उसने पूछा ये आप ये क्यों करना चाह, हमें ये क्यों बता रहे हैं, इसमें आपका क्या फ़ायदा. एंड आई हैड माई पासपोर्ट इन माई पॉकेट इन एट दैट टाइम. मैंने निकाला, मैंने कहा आई टेल यू व्हाट द वैल्यू इज. व्हेन आई गो आउट एंड आई प्लेस दिस पासपोर्ट एनीवे, आई वांट टू बी रिस्पेक्टेड. सो इफ यू डू द थिंग राइट, इट हेल्प्स मी. यू ब्रांड द कंट्री राइट. उस ज़माने में आप यूट्यूब पे जाके रिसर्च, मैं थोड़ी रिसर्च करके भी गया था. यूट्यूब पे आप जाके देखते वो हर चीज़ बोलते हम ऐसे नहीं है, हम ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है. बेटा जिसने भी ये किया ज़रा सोचा है, एवरी टाइम यू से आई एम नॉट दिस, यू आर एक्चुअली टेलिंग आई एम नॉट दिस, यू शोइंग द विजुअल. तो मत बताओ ना, ये बताओ कि हम हैं क्या. जावेद जब्बार साहब की किताब इसमें इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. इनफैक्ट आई डिड
pluses and minuses of Pakistan, and I think there were about 80 से ऊपर pluses and कोई 30 से कम minuses थे. लेकिन ये बातें हमें नहीं पता चलती. I don't know कि आपके सवाल के जवाब मैं देता जा रहा हूँ, नहीं देता जा रहा, क्या कर, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ unfiltered. I'm loving this conversation. And फरहाद भाई, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिस पे you feel like you were proud of it 27 सालों में, कोई ऐसा काम किसी कंपनी के लिए, इवन अपना कोई काम that you feel like यार ये करके काफ़ी अच्छा लगा था. Any story from your work? I know बहुत सारे होंगे. हाँ, because I've actually enjoyed everything that I've done. वरना मैं काम नहीं लेता. मुझे अभी भी याद है 98 में मैंने किया था एक बैंक. दे डोंट एग्जिस्ट नाउ इन पाकिस्तान. मैंने काम किया था उनके साथ and I wasn't happy. And it was just a 2-day communication skills program, but I wasn't happy because of what they had committed and then what they did. तो मुझे and उसके बाद मैं extra cautious हो गया. I don't take up any assignment that comes my way. I don't send proposals. I don't like sending proposals. अच्छा इसी मैं आपके तवासुद आजकल बोलते हैं ना, आपके तवासुद मैसेज दे रहा हूँ, प्रपोजल्स नहीं देता मैं. मुझे नहीं अच्छा लगता प्रपोजल देना. दैट्स जस्ट फेरी लैंड. इट्स यू नो फिक्शन से बीइंग सोल्ड. जब तक बात नहीं करोगे मैं प्रपोजल नहीं डालता हूँ. मुझे नहीं मज़ा आता प्रपोजल डालने में. तो और लेकिन जिद करता है वही बात है, ठीक है ले लो ना, मेरी जेब भी तो खाली है. खास कर कोविड की बात होती है. सो आई डू इट, बट आई थिंक एनी प्रोजेक्ट दैट आई डू आई इंश्योर दैट आई गिव वैल्यू. All my projects are very dear and special to me. चाहे फिर वो launch of brands हो जाएं, leading brands of carbonated drinks in Pakistan, whether they were going through a strategy on which color cap to use, to brands of these tea whiteners, the entire boom of tea whiteners at one point in time, to a point getting any of tea whiteners जो है ना, उसकी communication अलग होनी चाहिए. To tobacco at times, the new brands that they would launch, to schools, to I think any project that I've undertaken, I've been very, very happy with it. And जब मैं कहता हूँ happy with it, it is because my client is genuinely very, very happy with the outcome. And outcome भी एक जो उसको चाहिए था उसको मिला. वो जितना उसने बताया था उसको मिला था. If you have a turn around transformation जिसको चाहिए थी, oil and gas companies we've worked with, radical transformation in 6 months, उन्होंने मांगा, हमने दिया. आपको employee engagement के लिए आप exercises करवाते हो, वो हमने किया, आपका वो objective पूरा हुआ. So anything which was set out as an objective, and we only Funworks Global only takes on assignments where we know that we will deliver. तो जब ये कंफर्म हो जाता है, every project just becomes a wow. इसलिए किसी डॉक्टर को बोले ना कि आपको कौन से पेशेंट को काटते हैं, सबसे मज़ा आया, बोला हर पेशेंट जो बच गया ना, अल्लाह का शुक्र है बच गया. तो अल्लाह का शुक्र सारे पेशेंट सही सही निकले. थैंक यू सो मच फरहाद. इसी के साथ एक और क्वेश्चन कि एज ए ट्रेनर हमें ये लगता है कि स्टेज इज़ लाइक आवर प्रॉपर्टी, राइट? और हम यहाँ पे आके हर दिन हमारा अच्छा ही जाना है, और समटाइम्स अगर कोई दिन बुरा जाता है, इट्स लाइक यू डोंट कनेक्ट और यू डोंट डिलीवर. in this situation, how one should feel like कि जिस दिन आपका दिन नहीं है, you are not good on stage, उसके बाद what ideally should be done. And कभी आपके साथ ऐसा हुआ where you felt like यार this could have been better? Yeah, every session that I do, I think there could be something better. I'm a master of faux pas. हर दफ़ा मैं कोई ना कोई मैं तेरी ये अवॉइड कर देता तो अच्छा होता, ये बोल देता तो अच्छा होता, ये नहीं बोलता तो अच्छा होता, ये इधर खड़े होकर कर देता ज़्यादा अच्छा होता. अब I think that's reflection. It happens. I think the best session I ever had was my very first session, 11th July 96. I did a session on total quality management. That was my best session. उसके अंदर मुझे कोई मसला नहीं नज़र आया. That was just so cool. Right. And rather now coming. So, जहाँ तक आपने स्टेज की बात की है, I really don't look at myself on stage. And I think that is again how Funworks likes to redefine, and even the changes that have gone through in the company, some of you know this, is specifically because it is not about us. So even for example, the trainer, the art of facilitation program that we do, उसके अंदर बिल्कुल clear है, it's not about you on the stage. It's about a collective learning environment where you facilitate to find access. So it's not about मेरा दिन अच्छा गुजरेगा, हम सब साथ में थे ना, नहीं गुजरेगा सबका नहीं गुजरेगा, गुजरेगा सबका अच्छा गुजरेगा. So there is really no us versus them, and ये बीमारी है मेरी नज़र में, and I may be wrong, maybe that's how I'm different. ये जो होता है ना कि स्टेज पे मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरे को स्टेज चाहिए, लोग मेरी चीज़ कर रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ वो कर रहे हैं, they literally I'm the Pied Piper of this group, personally doesn't fascinate me, and I think it impacts how you facilitate them. Because then you're really not there to facilitate. You are there to train. You're not there. And I think Pakistan की industry थोड़ी सी mature होती जाती है कि सब they've started understanding motivational speaking में keynote speaking, which is subject related में क्या फ़र्क है. Motivational speaking is not training. Training is not presenting.
presenting is not facilitation, and the most unique of all of them is facilitation. अब सेल भी तो करना था ना भाई ने यहाँ पे आया हूँ. So art of facilitation, yeah, that's what we sell. फरहाद भाई, 2 क्वेश्चन. एक तो मैं कंपेशन पे आपसे पूछना चाह रहा हूँ. यू आर द फर्स्ट वन जिनसे हमने ये पहला टर्म पाकिस्तान में सुना, और फिर आपके कुछ टॉक्स भी मैंने देखे जिसमें आप कंपेशन पे बात करें. उससे पहले मैं चाह रहा हूँ, आप पख थ्योरी जो आपकी किताब है और कढ़ाई थ्योरी, उसका ख्याल कहाँ से आया, एंड हाउ डिड यू एंड अप ऑथरिंग ऑल दीज? देखो, बहुत ही लंबी कहानी है दोनों की दोनों. ये ना, ये पख थियरी वाज समथिंग जो कि नुमान ने और मैंने एक टाइम पे शुरू की थी, एंड देन वी स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट इट, एंड देन worked more and more on it. Then Farhad came into the picture, so then that book came out. Then Karai Theory also, there's something that Nadeem and I had started looking into a lot of research into this. I still have the first draft of this one. क्योंकि उसमें हमने किया ये था कि जब हम डिस्कस कर रहे थे ना, एंड ये बल्कि दोनों की दोनों किताब के शुरू में लिखा हुआ है, बोथ हैव बीन एक्नॉलेज्ड एज वेल इन द राइट एट द बिगनिंग ऑफ द बुक, कि किस तरीके से शुरू हुआ. तो लेकिन ये अभी नहीं लिखा मैंने, लेकिन नदीम मैंने जब शुरू किया था ना, तो हमने कढ़ाई थियरी स्पेशल इस तरह से कि कौन सा बंदा टमाटर की तरह है, कौन सा प्याज की तरह है. तो वी लुक्ड एट पर्सनैलिटी टाइप्स, वी गॉट इनटू रिसर्च एज वेल, एंड एज वी स्पीक वी आल्सो लुकिंग फॉर समबडी who could actually create a questionnaire so that once you finish the book you could find out कि आपकी टेंडेंसी किस पर्सनैलिटी टाइप की तरफ है, कौन से इंग्रेडिएंट की तरफ ज़्यादा, मिर्चों की तरह ज़्यादा हो, नमक की तरह ज़्यादा हो. सो वी वर्किंग ऑन दैट. सो वो फर्स्ट ड्राफ्ट के अंदर बाकायदा लिखा हुआ है, नदीम ने मैंने हमने कहा ये जो प्याज है ना, ये प्याज ये बंदा है, और टीम के अंदर जो लोग थे ना हमारे, उसके नाम लिखे हुए थे. वो कभी भी रिवील नहीं किया है, कभी शायद रिवील हो गया भी नहीं ओपनली, लेकिन हर कोई कहेगा. और मुझे अभी भी याद है टमाटर में किसका डाला है, क्योंकि वो इज़ नो लॉन्गर इन द इंडस्ट्री, लेकिन उसको पता लगेगा टमाटर तुम्हारा नाम लिखा होगा, मैं टमाटर हूँ. जिसको चिकन के कुछ शोधे थे उनको अलग हमने दिया, किसी को नींबू की तरह ऊपर से खाली निचोड़ने के लिए रखा हुआ था. लगे कि हाँ भाई हमारी टीम में ऐसे लोग भी हैं. बट या सो that's the people can read it, but it's very genuine. अभी जो मैं नेक्स्ट किताब पे जो काम कर रहा हूँ, that's बन कबाब. काफ़ी टाइम से इंटरेस्टिंगली these books take time. They take about 5 to 6 years. छोटी किताबें हैं, and in between my other things these books take time, and that is why I also started writing a lot of these e-books छोटी. So when you keep on writing it is actually good, and something again that I've been recommending a lot of trainers in Pakistan in particular, start writing. ज़ोर पड़ता है ना दिमाग में, लोगों को कहते हो ना चेंज करो, तो बेटा लिख लो, सीख लो, वर्ड्स के मीनिंग सीख लो, वर्ड्स के मतलब क्या होता है. आजकल मैंने वो डाला इन्फ्यूज एंड इन्फ्यूज, एंड सम पीपल रोट टू मी व्हाट इज़ द डिफरेंस. आई सेड गो चेक इट अप ऑन गूगल. तो वो मेरी कन्वर्सेशंस का ऑब्जेक्टिव भी यही होता है कई दफ़ा के लोग कहते हैं इसका मतलब समझ ही नहीं है. मैंने कहा जाओ फिर रिसर्च करो, अच्छी बात है, समझ में ना आए. सो यू नो आई थिंक पीपल नीड टू राइट. वर्ड्स हेल्प express the imagination. So it is critical that people are writing, they are sharing. मुझे ये भी मिलता है हम लिख लेंगे तो हमारे काम मिल जाएगा. मैं कहा बेटा आप तो ये बोलोगे मैं ये करूँगा तो ये तो वही बात होगी ना, हम ट्रेनिंग करवा दें, हमारे सेल्स अच्छी हो जाएगी, हमारे रिजल्ट्स अच्छे हो जाएंगे. आप सही काम कर लो, फिर देखते हैं क्या होता है. Because it's a stretch. I don't know how many people, but I haven't seen a lot of people writing. Very few handful of people write, which is actually good. When I can recall when I started coming into this career, तो दो sources थे जहाँ पे मैं regularly जाता था. One was the reading page of Navitas. उस पे आपके जो articles, नदीम भाई के articles, शीरीन आपा के articles, बहुत अच्छा reading के लिए content मिल जाता था. और दूसरा टॉरेंट पे मैंने टोनी रॉबिन्स के अनएडिटेड वर्कशॉप्स डाउनलोड किए थे, which was like कोई 22 GB का डेटा था उसमें फरहाद भाई. और उसमें वो जो उनके सारे 5 days के प्रोग्राम है, कोई 8 से 10 ऐसे प्रोग्राम थे. इट टुक मी लाइक कोई 8-10 दिन जो है वो मैंने वो सारे देखे और उसके अनएडिटेड. तब तो मैं याद हाफिज हो गया. और टोनी की वो जो 6 नीड्स की जो बात करते हैं, सर्टेनिटी से लेकर कॉन्ट्रीब्यूशन तक, दैट हेल्प मी अ लॉट. इवन द रीडिंग पेज ऑफ नेविटस जिसमें आपके आर्टिकल्स, इवन आई कैन रिकॉल बन कबाब या इससे रिलेटेड डाला था मैंने, उसी वक्त डाला था. मतलब लिखने का टाइम नहीं मिला, उसके पीछे और 2 चीज़ें हो गई. लेकिन ये पता है आपने बड़े अच्छा, एंड इफ आई टेक इट डीपर एज वेल, लिखने पढ़ने का कल्चर जो है ना बहुत ज़रूरी है. इस वक्त जो हम पाकिस्तान के हालात देख रहे हैं ना, लॉट ऑफ इट not 100%, there's no research to say it is, there's no I mean just a creation in my mind. It has a lot to do with the culture of reading and writing. हम ना लिखते हैं ना पढ़ते हैं. मुझे याद है एक दफ़ा क्लाइंट था, वो क्या हो गया अच्छा. एंड सो व्हाट गिव्स यू स्लीपलेस नाइट समटाइम्स scares me is पाकिस्तान में जो हालात है ना, और बहुत सारी चीज़ें मज़े की आती है, जिस चीज़ को आता होगा ना मसला है. आई थिंक वी शुड कॉन्शियसली, स्कूल्स होना तो एक चीज़ है, क्रिएट अ कल्चर ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग.
रीडिंग खास तौर से. आई गिव यू ए सिंपल एग्जांपल. लीडर्स के बारे में कहा जाता है लीडर्स आर विजनरी. अरे मैं बिल्कुल सिंपल करता हूँ. लीडर्स आर विजनरी सुना हुआ है, यानी जिसका विजन होता है वो लीडर है. यानी कि इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए लीडर्स की भी. विजन एक होगा तो तस्वीर होगी ना. इट्स नॉट अबाउट रिटन गोल टू बी सो एंड सो नहीं है. इट नीड्स टू बी अ विजुअल, समथिंग व्हिच इज देयर इन द इमेजिनेशन. इमेजिनेशन बेहतर होती है थ्रू रीडिंग. Right, so now leaders need to be visionary. They need to have imagination that gives them the vision. Imagination comes from reading. Where is the reading? If your बच्चas don't read today, कौन सी imagination आएगी उनकी? ये तो वही देर नज़र आ रहा है वही है. Imagination आई नहीं. Imagination नहीं है, vision कोई बना नहीं. लीडर आपका हो गया, कर लो. ये सारे के सारे बीमार हैं. अगर रीडिंग करते भी हैं, जो रीडिंग करते हैं उनके पास कुछ है. अभी मैं नहीं जाता, वरना सारे के सारे ना आजकल बड़ी सख्ती हो गई है वैसे, ठीक है ना. बट जो कहते भी रीडिंग, पता नहीं क्या रीडिंग करते हैं. बट बच्चों को रीडिंग इनकरेज करना पेरेंट्स का काम है. उनके साथ बैठ के रीड करना पेरेंट्स का काम है. हम इतना जो कहते हैं, अभी थोड़ा टाइम पहले विमेंस डे में आया था एक चीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर. ये मार्च का महीना है ना, और कोई इस साल ये कर रहा था चेंज जगह करना. जिसको उठेगा हमें खवातीन को, या तो खवातीनों के सेशन के अंदर पता है कि कुछ खवातीन कितनी कामयाब हो गई हैं, या ये होता है कि क्या क्या इनके हकूक़ हैं, क्या क्या करना चाहिए. यार बातें हैं, आप करो जो करना है ना. हैव अ डिनर टॉक, वेरी स्टैंडर्ड. यू रियली वांट टू कंट्रीब्यूट टू दिस. एवरीबडी इज वर्किंग इन दिस कंपनी. जिन्होंने ये किया हर रोज़ रात को 10 मिनट खाने के ऊपर स्पीक ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड टीच योर बॉयज़ हाउ टू ट्रीट वुमेन. आएगा चेंज. ये सेशन करते हैं, बातें करते हैं. अभी मैं कॉन्फ्रेंस में गया था, शुरू में एक बंदे आए आधा घंटा इकोनॉमिस्ट के बोल के पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्या करना चाहिए. बेटा मुझे क्यों बता रहे हो क्या करना चाहिए? मैंने जाके चेंज करने रेगुलेशन, मैं दारों का नाम ना लूँ भी, मैं जाके चेंज करने नहीं ना. जिसको करने वो सही करो. हमें आके बता दो पाकिस्तान ये कर लेगा तो ऐसा हो जाएगा. पता है. हम लोगों का चैलेंज है कि ये लोग कम्युनिकेट नहीं करते. कॉन्वर्सेशन होंगे, डायलॉग होगा, पता है. सीढ़ी भी बोल रही है इंटरेस्टिंग. हमें पता है. स्पीक टू द राइट ऑडियंस. Individually you can do things. So reading, you started off with reading. I think reading and writing is critical, and trainers को कुछ contribute करना है इसमें बहुत ज़्यादा कर सकते हैं. हम लोग ये जो publishing house है FK Squared, उसका तो एजेंडा यही है, creating a culture of reading and writing. It's like books written by the children for the children. तो if somebody is interested, they can go check out FK Squared के अंदर. कम काम किया कि वही बात है, acceptance ऐसी चीज़ों का कम आता है, and it's a साइड हसल जिसके अंदर डज नॉट इन्वॉल्व अस ऑल द टाइम. चाहे मैं हूँ या फराज हैं, तो हम लोग पूरा टाइम नहीं इसमें इन्वॉल्व होते हैं. लेकिन दैट्स इट. ऐसे करते कम करते हैं लेकिन काम करते हैं. बिकॉज वही बात है ना, साइड हसल इज़ नॉट टू मेक द मनी. इट इज़ टू रियलाइज एन एस्पिरेशन, अ ड्रीम, अ डिज़ायर, अ पर्पस. लेकिन समथिंग एक्साइटिंग. सो दैट्स व्हाट द पर्पस. इन फरहाद भाई, इसी रीडिंग और राइटिंग के हवाले से पहले तो कुछ चैलेंज फिर भी लिख लेते थे. व्हाट अबाउट द टेक्नोलॉजिकल AI चेंजेस? लाइक अब तो वही काम चैट GPT हमें करके दे रहा है, और जो AI की चेंजेस हैं वो हमें. कल रात को किसी से बात हो रही थी कि चैट GPT से हमारे ऊपर फ़र्क है. देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड, इट्स द जनरल कॉन्वर्सेशन, एंड परहैप्स आई एम नॉट सेइंग द मेजॉरिटी डू इट, बट आई एम शेयरिंग द पेन पॉइंट्स ओनली. चैट GPT आ गया, ठीक है, आपका काम कर देगा, वेरी गुड. द क्वेश्चन इज़ हाउ डू यू इंटेंड देन यूजिंग द स्पेयर टाइम. आप कहते हैं चैट, एक तो अभी तक उसको चैट GPT को बहुत सीखना है. वैसे मैंने एक बार ट्राई किया है, वैसे अच्छा है, सीखना बहुत है, एलिमेंट्री से भी कम है इस वक्त. बट दे विल गिव यू द इन्फॉर्मेशन. नाउ द इफ आई एम अ पर्सन हु इज़ प्रोग्रेसिव, इफ आई हैव टू लर्न एनीबडी, इफ आई एम प्रो लर्निंग, आई नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग कि चैट GPT जो मेरा काम करके दे रहा है, आर्टिफिशियल जो भी मेरा काम करके दे रहा है, अब मेरे पास टाइम बाकी बचा है, तो मैं उस टाइम को किस तरह यूज़ करके इसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता हूँ. बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज स्टिल आर्टिफिशियल. यूज़ योर इंटेलिजेंस फर्स्ट. सो इफ़ द इन्वायरमेंट वी से चैट GPT आके लोगों की नौकरियाँ चली जाएंगी, रिसर्च, हाँ तो कुछ कर ही लो ना. वो भी तो इंसानों ने ही बनाया है ना, तो क्यों रिलाई करते हो वो वाला काम. एक ज़माना था ऑडिट फाइनेंस के बगैर, फाइनेंस बैकग्राउंड, एक ज़माना था कि ऑडिट कंपनी को सबसे ज़्यादा पैसे मिलते, द सोर्स ऑफ इनकम, द कैश काउ वे बैक इन द डे वाज मेकिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स फॉर योर क्लाइंट्स. Who makes profit and loss account? अब उस ज़माने का जो नहीं, हम तो ये बनाते हैं, हम तो एक्सपर्ट हैं, हम तो PNL करते हैं, हम तो बगैर कैलकुलेटर देखे हिसाब कर लेते थे. ठीक है, इट्स अ टैलेंट, इट्स नो लॉन्गर रिक्वायर्ड. यूज़ दैट टाइम विच यू आर नाउ सेविंग टू क्रिएट समथिंग न्यू. री-इन्वेंट योर सेल्फ ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस. यू डोंट री-इन्वेंट, यू आर स्टक इन द पास्ट. यू आर स्टक इन द पास्ट, यू रियली डोंट नो how to shape the future. I'm not saying where do you want to go. You just really don't know how to shape the future. So chat GPT and all the artificial intelligence, I'm so happy. लोग कहते हैं लोगों की नौकरियाँ चल जाएंगी. मैंने कहा बोलो नई चीज़ें सीखें.
Up down is just a question of time. How soon do you realize? Are we late? We are significantly late. And then again, different countries, different cultures, it's different. Many years back, I was going for a project. जहाँ के मैंने कुछ लोगों को बोला था यूनिवर्सिटी के grads, एक्सेल पे काम नहीं करना आता था उनके, क्योंकि आई हैव अ मार्केटिंग और हैव दिस, और अंग्रेजी में बहुत बड़ी कूल होती है कुछ लोगों की फ्रॉम दीज लीडिंग सो कॉल्ड लीडिंग यूनिवर्सिटीज़. एंड देन वर्सेस somebody who studied abroad came, उनके जब मैं CV देखता उनसे इंटरेक्ट करता था, एक्सेल पे काम करवा लो. ये नहीं था कि मैं मार्केटिंग है तो या HR है तो मैं एक्सेल नहीं कर सकता या कर सकती, यानी मुझे ये नहीं आता. होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन एज अ प्रोफेशनल नहीं आता है, सीखो ना. तो जो आपका जो पॉइंट था कि लोग रील्स देखते चीज़ें, मैंने कहा आपने ऐसा, आई रियली विश पीपल एटलीस्ट लुक एट इट. एंड देखेंगे भी तो कई दफ़ा लोग जजमेंटल होने की, एज अपोज टू थिंकिंग यू नो व्हाट, दिस इज द पॉइंट ऑफ व्यू. मे बी राइट, मे बी रॉन्ग. The person is saying it, there has to be something behind it. Let me just try understanding. Real learning is not an acquisition of knowledge. Real learning is understanding the context. That's where the learning will actually come. तो अभी मैं भी जो बातें करूँ नहीं एग्री करो, मेरा क्या जाता है, ठीक है. मैं तो खैर खुद भी एग्री नहीं करूँगा 3 महीने बाद. मैं कहा नहीं मैंने बोला था, बट टाइम्स हैव चेंज्ड. ChatGPT मैंने बोला था, बट पीपल एक्चुअली डूइंग दिस. इट इज रियली नॉट. थिंग्स विल चेंज because I'm not fixated on what I've acquired. I'm very fixated on my values, but otherwise I'm very flexible on what I've acquired. Wow, Zabardast. So yeah. Farhad, the last few questions before we move. This is your quick fire, rapid fire. Yeah, उसके बाद. ये rapid fire आप देते हो करण जौहर की तरह, कोई कॉफी देते हो? Not really. I really don't mind वैसे. अच्छा ठीक हो गया. So Farhad, leadership lessons जो आपने जिंदगी ने आपको सिखाए, that you find very close to your heart. Stick to your principles. And no matter how difficult it is, don't give up to your principles. Principles ज़रूरी है. आपके इधर ये लोगों के प्रेशर में आगे चीज़ें करना, ये करना, डाउट करना, जो असूली तौर पे बात सही है वो बात सही है, जो असूली तौर पे गलत है वो गलत है. फिर पैसे मिलते हैं नहीं मिलते, क्लाइंट आते हैं नहीं आते, काम कैसे चलता है, लोग आपको पसंद करते हैं नहीं पसंद करते. That's the problem. So now finally before coming to the rapid fire, I share a very close bond with मरहूम नदीम भाई, and I know जब ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आपका नाम आता है तो मतलब जिन लोगों ने मेरे साथ शुरू किया था वो आपके नाम के साथ नदीम भाई को एसोसिएट ज़रूर करते हैं या नदीम के नाम के साथ आपको एसोसिएट ज़रूर करते हैं. आई वुड लव कि अगर आप उनके बारे में कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहें. How was your bond with him? How did you become friends? Yeah, हुआ ये कि I tell you first time that I met him. It's a little longish story. Okay, Yeah, so it was one of his companies that he was working in. So he was working, and then I got an assignment for a particular client. मैं इंडस्ट्री से नहीं पता, लोगों को पता होगा जो नदीम में हिस्ट्री जानते हैं. मेरा था सुबह को हम शुरू करेंगे, सुबह को 9 बजे. इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द उनकी स्ट्रैटेजी मीटिंग के बाद. इट वॉज सपोज टू बी नाइस लाइट डे. दे डू सम एक्सरसाइजेस, फैमिली को भी बुलाएंगे, तो फैमिली विजन बोर्डिंग. एंड वे बैक इन द डे, आई थिंक दिस इज 2003. सो ये करना है. तो मैंने कहा ठीक है. अच्छा, मैं अपने मज़े से 8 बजे 1 घंटा पहले ना मज़े से जा रहा हूँ PC पूर्वन, एंड आई एम गोइंग ओवर. मैं देखूँ सब लोग अंदर बैठे हुए एंड आई हैव नो क्लू. एंड देन सम द पर्सन ऑर्गेनाइजिंग इट, दे सेड लिसन कैन यू कम बैक आफ्टर, मीटिंग चल रही है. मैं कहा ठीक है, लेकिन मुझे कम से कम आधे घंटे का ब्रेक देना, सो दैट आई कैन गिव पीपल अ ब्रेक. वो सुबह को 7 बजे से बैठे हुए थे. अच्छा, फिर जब सेशन शुरू भी हुआ ना, वो लोग जो है ना बड़े जोन में नहीं आ रहे. होता है कि चलो एंडिंग है, स्ट्रैटेजी होगी, पीपल शुड बी हैप्पी. इट टुक एफर्ट टू गो इनटू द हैप्पीनेस जोन. मेरी समझ नहीं आया. पता ये चला कि एक बंदा उसमें है, जो मोटा कहते थे, एक बंदा है उसके जिसने गंद डाली थी, जिसकी वजह से द हेड ऑफ द बिजनेस गॉट वेरी चीज्ड ऑफ, जिसकी वजह से आज सुबह को भी मीटिंग हुई है एंड दे वर नॉट वेरी हैप्पी. तो एक बंदा है. मैं कहा बंदा है कौन? तो एक बंदा है. ये मैंने कहा अच्छा, इसने गंद की हुई थी, यानी इसकी गंद के नस्ला मुझ पर निकला. मेरा पूरा सेशन जो है ना आगे पीछे हो गया था इन टर्म्स ऑफ पिकिंग अप द मोमेंटम. एंड तो ठीक है चलो, वो तो सेशन खत्म हो गया. नथिंग एक्सेप्शनल, ही वाज जस्ट वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स. दूसरे सुबह को हम नाश्ते पे बैठे. अच्छा, वहाँ पे इसने कहानी शुरू की है. दोज ऑफ यू नो हिम, दिस इज द सेम स्टोरी दैट आई डोंट नो इफ यू एवर डिड द स्टोरी विथ यू. वो स्टोरी बता रहा है कि लव स्टोरी सुना रहा है. उसका एक दोस्त है सालार, एंड यू गो इनटू एंटायर थिंग, द माइन्यूटेस्ट ऑफ डिटेल. कहानी सुना तो बिल्कुल पीक पे आ गया ना, उसे पानी का ग्लास, फिर अभी भी याद है, वो सामने बैठा था, इधर मैं इधर बैठा हूँ, और यहाँ पे तो पूरा जमघट्टा जमा हो गया उसके और प्रोफेशनल. तो पानी पिया है, लोगों ने फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, ये तो मैं खाली ऐसी बात कर रहा था. लोगों का जो रिएक्शन निकला, एंड आई बर्स्ट आउट लाफिंग. मेरी ज़िंदगी में कभी किसी ने मेरा इतना टाइम ज़ाया नहीं किया था जितना उसने मेरी ज़िंदगी का टाइम ज़ाया किया था. I mean 45 minutes of nothing but crap.
ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। मेरी इतनी हंसी लगा यार ये क्या बात है। फिर मेरी इसकी थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हुई है, देन ही शोड इंटरेस्ट इन लीविंग दैट कंपनी, जॉइनिंग अस। उसके अंदर भी हमने बड़े स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशन डालते, ये करोगे फिर हम आने देंगे, क्योंकि हमें क्या पता कौन है, यू नो वी डोंट नो हू ही इज, यू वांट टू जॉइन। बहुत लोग आते हैं वी वांट टू जॉइन, तो हमने कहा ये कंडीशन है, पूरी कर लेते तो आ जाना है ना। उसमें भी बड़े मज़े लिया, अभी मैंने तो उसके भी मज़े ले रहा था ना, 45 मिनट में ज़ाया किए थे बेटा, अब ये करके दिखाओ। बड़ा ज़बरदस्त था। He actually did what we asked him to do, and these are not very easy things. He came back after 2-3 months. He said, "Okay, कर लिया, अब तो ले लो मुझे।" हमने कहा ठीक है आ जाओ। पहले 5-6 महीने हम लोगों की नहीं बनती थी यानी मुझे वो समझ नहीं आता, उसको मैं समझ नहीं आता। नदीम अक्सर मजाक में कहता था कि जिस लैब में फरहाद को मैन्युफैक्चर किया गया उस लैब को आग लगा दी गई है, बिकॉज आई वुड बी जस्ट सो स्टेप वाइज एंड थिंक, नॉट दैट आई फॉलो गो द स्टेप, लाइक आई नीड टू बी वेरी क्लियर। आई थिंक दैट्स माई फाइनेंस बैकग्राउंड कम्स इन, यू नो, आई नीड टू अंडरस्टैंड एटलीस्ट द होल थिंग। मैं हवाई फायर में नहीं जाऊँगा। मुझे वो समझ में नहीं आता था क्या है, यू नो। अच्छा ठीक है, कहानी अच्छी लगी, यू नो, आई लाइक योर टैलेंट, बट दैट डजंट मीन कि हर वक्त जो है ना शुरू होगा। फिर हम लोग बातचीत भी शायद इतनी नहीं करते थे, एंड मे बी एट दैट टाइम, एंड दैट इज़ वाई आई थिंक दैट द थिंग्स हैड टू चेंज मच लेटर, कि वी आर नॉट टुगेदर। मुझे ये भी लगा कि फीलिंग आई। फिर हम लोग गए श्रीलंका, चल रहे वापस, फिर हम श्रीलंका के रास्ते में क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे थे ना, द लॉट ऑफ थिंग्स, दिस इज द फर्स्ट टाइम हिम एंड आई एक्चुअली गॉट टू स्पीक। ही डिस्कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट मी, आई डिस्कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हिम। फिर हमें ये भी पता चला कि कंपनी के अंदर उस वक्त, इस वे बैक इन 2004-5, हमें एक तरह से अलग अलग भी फीड किया गया था एक दूसरे को। हमने कहा तेरी ये बात है, फरहाद को ये नहीं पसंद हो तुम ये नहीं करना, नदीम को वो नहीं पसंद तुम ये नहीं करना। मैंने कहा अच्छा ये ऐसी बात है। हम वापस आए तो हम बड़े अच्छे दोस्त हैं, एंड देन आई थिंक द रेस्ट इज हिस्ट्री। वी जस्ट मल्टीप्लाइड, वी डिड द बेस्ट ऑफ असाइनमेंट्स टुगेदर। इफ़ यू आस्क मी, वो ट्रेन द ट्रेनर, पहले हम लोग साथ में थे तो हम 5 दिन का करते थे, हम अभी भी 5 दिन का करते हैं। वो अक्सर मैं कहता हूँ जो लोग सेशन कम कर देते हैं, मैंने कहा ये क्या बात हुई, आपका बंदे कम हो गए तो आप कंटेंट भी कम कर दोगे। बट एवरी टाइम आई एम डूइंग दिस ट्रेन द ट्रेनर, यस, नदीम हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल दैट ही प्लेड ऑन डे 4। सो आई स्टिल थिंक ऑफ हिम और क्योंकि अच्छा एक और चीज़ है, नदीम वी कुड बोथ पुल ऑफ ईच अदर। So he could pull off a Farhad in a session, I could pull off a Nadeem in a session. So we had our own different identity. We would never copy paste each other's content. We would not even look at each other's session. मैं नहीं जानना चाहता नदीम ने कौन सी कहानियाँ बताई हैं, ना ही नदीम ये देखता था कि मैंने क्या कहानियाँ बताई हैं, ताकि हमारी कभी भी क्लाइंट वर्किंग में था देयर इज नो ओवरलैप। यहाँ पे तो ये होता ना, एक कहानी एक ट्रेनर ने बोला मेरे साथ ये हुआ था, आपका तो इससे थोड़ी देर पहले तो दूसरी आंटी के साथ भी यही हुआ था, इससे बोला मेरे साथ ये हुआ है। Nadeem and my कहानीज़ are very different. Nadeem and I have maintained that किताबें भी हम एक दूसरे की नहीं पढ़ते थे। एक होता है ना किताब रेकमेंड करो, so that our insights and outlook is very different. Examples कभी शेयर कर लेते थे एक दूसरे के साथ, but our reading preferences were also very different. And we like to keep it that way. अंदर सेशन चल रहा होगा उसका, मैं बाहर खड़ा वेट कर लूँगा, बड़ा कॉन्शियसली, ताकि गलती से भी कहीं मेरे मुँह से वो कहानी नहीं आ जाए। And that's actually what ended up giving a lot of power as an organization, because we were not eating each other's content. And stories, and everything was our own and genuinely authentically our own. So that helped a lot. We did a lot of assignments, कहीं बाहर गए हमने चीज़ें की, अंडरस्टैंडिंग इस तरीके की थी। अक्सर लोग होते हैं ना, अच्छा मेरा सेशन खत्म अब आपके पास ये आएंगे, ये ड्रामा था ही नहीं हम लोगों। एंड अनप्लान्ड वी वुड गो, पता होता था, मुझे पता है ना नदीम है सेशन हो जाएगा, मुझे तैयारी करने की जरूरत नहीं है। नदीम को लगता था फरहाद है ना हो जाएगा, मुझे तैयारी करने की जरूरत है, पता है दोनों की तैयारी नहीं होती थी, और दोनों डैम। एंड यू नो आई कैन रिकॉल इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेज। एक मुझे अभी भी याद है कि एक्सरसाइज हो रही थी, अरे एक्सरसाइज मैंने प्लान की थी, मैंने कहा ये करवाएंगे। अच्छा भाई उसके बाद क्या, बिग ग्रू 80 पीपल, सो आई वेंट, आई थिंक इसका डीब्रीफ तुम कर लेना इधर, मैं क्या बोल के निकल गया, डीब्रीफ कर लेना, निकल के आगे। थोड़ी देर का मैं खड़ा हुआ दूसरी टीम के, वो वाइल देवर डू क्या आता है, मैं नहीं कर रहा। कर लेना यार, मुझे नहीं करना है, तो नहीं मैं नहीं कर रहा, तो कर ले, ख़त्म करना यार किसी तरह। मैं आई एम नॉट डूइंग, मैं जा रहा हूँ बाथरूम, दफ़ा हो जाओ। मैं चला गया, अचानक फिर आता मैंने कुत्ते, मैं नहीं कर रहा, कुत्ते मैं नहीं कर रहा। आई एम लाइक अच्छा अब एक्सरसाइज खत्म हो गई है, तकरीबन 20 मिनट हो गए, एक्सरसाइज खत्म हो गई, आप दोनों को नहीं पता। सो लेट्स स्टार्ट। वहाँ पे नदी में कुछ बोला, फिर मैंने कुछ बोला, इतना ज़बरदस्त डीब्रीफ हो गया उसका, जो कि पता नहीं था कैसे हो, लेकिन वो है ना। अच्छा एक और चीज़ थी ना, आपने स्टेज की बात की, नदीम एंड माई सेल्फ वुड नेवर फाइट फॉर स्टेज टाइम। ठीक है ना, मुझे क्या मिल रहा है, मैं कितनी देर बात कर रहा हूँ, लोग वाह उसकी ज़्यादा कर रहे हैं या मेरे कर, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, ना नदीम को फ़र्क पड़ता था ना मुझे पड़ता। हमें पता है हमारे स्टाइल्स हैं, पीपल हैव स्टाइल, सम पीपल लाइक चाइनीज़, सम पीपल लाइक पाकिस्तानी, जिसको जो पसंद आएगा वो खाएगा। किसी को वेल डन स्टेक चाहिए होता है, किसी को रेड चाहिए होता है, जिसको जो पसंद है खाएगा। तो इट वॉजंट एट एनी पॉइंट अबाउट नदीम एंड मी, इट वॉज ओनली अबाउट जिसको जो पसंद है। वो लोग नदीम भाई में बड़ा मजा है, अच्छी बात है, मुझे फरहाद भाई क्या करना है, अच्छा ठीक है बड़ी अच्छी बात है। सो देयर वाज जीरो इनसिक्योरिटी, देयर वाज लॉट ऑफ ट्रस्ट,
there's a lot of respect for each other's work. क्योंकि I would know what he did had a lot of specialty. वही बात है, पुलिंग इट ऑफ. हम लोग कहते थे लेट मी पुल ऑफ अ FK, लेट मी पुल ऑफ एन NC. तो वो हम करते थे. एक बड़ा करने की ख्वाहिश से हमने वो भी शुरू किया था. एक टाइम पे आपने सुना होगा FNC के वेंचर्स. अब वो भी देखो नाम कितना शरारती था. नाउ लॉट ऑफ पीपल से फरहाद ऐसा ना, हाँ, बिकॉज डीप डाउन आवर लव फॉर लाइफ वाज ऑलमोस्ट द सेम. तो हमारे मजाक भी एक जैसे थे. एंड सो या ये है. एंड इफ आई एवर हैड अ फ्रेंड ही वाज. एंड अच्छा इसके साथ मेरी दोस्ती हुई एज अ रिजल्ट ऑफ वर्क. सो इट्स नॉट समथिंग हम बचपन से ज़बरदस्ती के दोस्त पड़ जाते हैं. तो ये नहीं है. वी वर वर्किंग टुगेदर, वी डेवलप फ्रेंडशिप, वी डेवलप ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर. एंड आई एम प्रीटी श्योर ऊपर भी जाके उसे गंदी डाली होगी कोई ना कोई. अब ये मैं मजाक कर सकता हूँ कि वो मैं हो गया. किसी को तकलीफ होती है ना कि ऐसे आदमी ऐसे बात करता है, हाँ ठीक है मेरा दोस्त है, नन ऑफ योर बिजनेस. लिटरली नन ऑफ योर बिजनेस. Thank you so much Farhad for sharing this. Before I move on to the rapid fire, एक और चीज़, I know you are a Bollywood lover as well. पठान की जो सक्सेस है उसके बाद आप शाहरुख खान के ब्रांड को लेकर खुश हैं या अभी तक कंसर्न हैं? वो शाहरुख खान है, उसकी मर्जी जो करना है करे. अच्छा, but as a Bollywood lover, do you follow these updates? यार आई डोंट फॉलो एनी अपडेट्स. आई एंजॉय वॉचिंग मूवीज़. मुझे फिल्मों में मज़ा आता है. मैं फिल्में देखता हूँ, मैं एंजॉय, और मैं सब फिल्में देखता हूँ. जो ऐसी फिल्में भी होती है लोग कहते हैं इसका नाम नहीं सुना होता, मैं देखी हुई है मैंने. आई एंजॉय मूवीज़, दैट्स इट. सो इट्स नॉट स्पेसिफिकली एनी एक्टर और एनीथिंग. फिल्म अच्छी हो मुझे तो ज़ीरो थी. हाँ, ज़ीरो भी अच्छी लगी थी मुझे. फ़ैन भी अच्छी लगी थी मुझे. इसके अंदर कौन सी थी आलिया भट्ट के साथ, वैसे डेवलप डिपेंडेंस ऑन हिम. हाँ, सम जिंदगी. हाँ, डियर जिंदगी. उसके अंदर मुझे इंसाइट ये मिला जो मैं अक्सर लोगों को भी कहता हूँ. आई थिंक रेफरेंस पॉइंट बड़ा अच्छा हो जाता है. फिल्मों की बात होती है ना, किसी भी कोच या काउंसलर को डिपेंडेंसी नहीं पैदा करनी चाहिए. तो वो पठान आई थिंक मैनी पीपल डिड नॉट लाइक इट. लेकिन फिर वो बात है ना, इन्होंने कब देखी जब प्राइम पे निकली है. यस, इट्स अ सिनेमा मूवी. उस वक्त आपके खास शुरू के दिनों में जो हंगामा होता है ना, सीटियाँ बजती हैं, चीज़ें होती हैं, इट इज़ दैट मूवी. वो बात है, पर्पस क्या है ना, क्लाइंट का भी ऑब्जेक्टिव क्या है. बड़ी स्क्रीन पे देखो, आफ्टर ऑल दीज इयर्स इट हैड अ डिफरेंट फील ऑल टुगेदर. आई वॉच्ड इट एट होम, इवन एट होम आई इवन डिडंट गेट दैट फील दैट आई गॉट इन द थिएटर. तो बट आई थिंक येस, आई थिंक इट्स अ गुड मूवी. और खासतौर से वो जो सलमान खान एंड दे गेट टुगेदर, और वो जो स्वैग है सलमान का. आई मीन फिल्में है ना, तो आई वॉच फिल्में फॉर द फन ऑफ इट. तो वो लोग ये कहते इसमें क्या सीखा, मैंने ये सीखा ज़िंदगी कैसे एंजॉय करते हैं. देखो मज़े देखो, इट्स लार्जर देन लाइफ इमेजिनेशन एंड विजन. Enjoy that. Okay, Farhad, now coming to the final rapid fire, and these are all about this or that. I know कि contextual होते हैं सारी चीज़ें, but this or that में I know कि you'll perform so well. So कुछ गिफ्ट तो दे दो. Yeah, on that. तो बाद में बजा देना. Okay, sure, Farhad, you'll love to. Farhad, so this or that round is Elon Musk or Bill Gates? Elon Musk. Okay, vision or execution? Execution. Innovation or efficiency? Innovation. Okay. Strategic planning or tactical planning? पहला वाला तो सही नहीं है. You can't have strategic planning because they're two different words. So yeah, I can't answer this. ये एक और इंस्टीट्यूशन के साथ ही मेरा बड़ा फटा चला. उन्होंने डाला स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन के अंदर 3 चॉइसेस दिए. प्लानिंग है, जैसे कोर्स दैट आई वाज डूइंग. ऐसे सवाल ही गलत है. वो कहते अच्छा हमारे सवाल गलत है. ऐसे हाँ, वो नहीं मान रहे थे. कन्वेंशनल हो गए उनका मसला. तो मैंने टेस्ट भी नहीं दिया. मैं नहीं देता टेस्ट. Right. Okay. A few more. लीडरशिप डेवलपमेंट और मैनेजमेंट डेवलपमेंट. ये देखा आप लोगों ने मना किया था कॉन्टेक्स्ट के अंदर, लेकिन कॉन्टेक्स्ट है ना कि कुछ लोगों का मैनेजमेंट डेवलपमेंट ज़रूरी है एफिशिएंसी के लिए, कंपनी को चलाने के लिए तो चाहिए ना. तो दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. लीडरशिप डेवलपमेंट, इफ यू डू मैनेजमेंट डेवलपमेंट इन द एब्सेंस ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट, योर ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट मूविंग फॉरवर्ड. यू डू लीडरशिप डेवलपमेंट इन द एब्सेंस ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, यू हैव नो हिसाब किताब एट ऑल. तो डिपेंड करता है कौन है. मेरे लिए अगर पूछो मेरे लिए क्या है, मैं क्या करता हूँ, मैं लीडरशिप डेवलपमेंट में. ओके फरहाद भाई, नाउ दिस इज लाइक योर फेवरेट. सो व्हाट इज योर फेवरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम टू डिलीवर? Yeah, there is this leadership academy thing that we are doing. It's the Southeast Asia Leadership Academy, and now they also have they also have Middle East Leadership Academy, Central Europe. This is one of the most exciting leadership programs and truly impactful transformational journeys that I've seen. So I've been one of the facilitators. I attended that in 2014. Then I've also been 15. Then I've also facilitated. I've just come back after. It's a 10-day leadership program. And वो होता है ना, किसी तरह से torture नहीं देते आपको. They go through a process, and you trust the process. It's truly transformational in its way. लेकिन कोई ये कहेगा लीडरशिप का मुझे मॉडल बता था कि ये कर लें, और बेटा वो फिर आप मैनेजमेंट प्रोग्राम कर लो.
It takes you out of the utopia of the typical management understanding that MBAs develop you for management. They don't develop you for leadership. Right. Was there the tribal leadership? And there's also John King. I met him. He's one of the faculty members. So John King, yes, I love him. I think one of the most interesting questions he asks is, what is the nature of your dream? Wow. बस इस तरह की बात है आपको कहेगा ना वो जो पढ़ा लिखा जो step 1 step 2 no but dream is 5 alphabets starts with the D management developer go not for you allow yourself to get lost. Okay, rather a few more. Favorite way to celebrate success? Watch a movie. Okay. Okay. What is your favorite startup that you have worked with? All are my favorite. I have answered this question. I'm not. Yeah. I only work with good things. Okay. Even my clients are the best. Like, is this your client? What about this? I said, I told you I work with the best. If it's not working with me, then I don't know. Okay. A few more, Farhad. What is your favorite part about coaching C-level executives? What's my favorite part? Yeah. When they allow their vulnerability to show up. Wow. And finally, complete the sentence. These are like my favorite as well. The biggest challenge facing leaders today is? Lack of awareness. Okay. The best way to improve workplace culture is? Improve your own psychological safety. It's a mental issue. खुद के दिमाग में होता है psychological safety. Workplace culture अच्छा हो जाएगा. Okay. The best advice you ever received was? Yeah, you're doing the right thing. Keep doing it. Okay. मैं देखिए स्टोरी है मैं बाद में बताऊंगा आपका रैपिड फायर खत्म होगा बताऊंगा ये कहाँ से आया. Sure. In your free time, you like to watch movies? Watch movies? You know it? I am so transparent and obvious. Yeah. So a few more. Your life motto is? Invest in your learning. Don't spend, but invest in your learning. Your favorite book? Crazy Times Call for Crazy Organizations. Okay. By Tom Peters. Lovely. Farhad bhai, thank you so much for being with us. It was such a great pleasure having with you insights, stories that you have shared. I'm sure these stories and insights will inspire our listeners. So I hope you all enjoyed this episode. See you in the next one.